والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ويقال فيه وإن العلماء ورثة الأنبياء رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا. ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا. دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا. جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر اے گدا علم جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. سبحان اللہ. معزز دوستو، آج 22 فروری 2021 ہے. میں آپ کی اس جامع مسجد وسطیٰ میں مانسیرا سٹی میں مولانا قاری عطا الرحمان صاحب اور مولانا حفیظ الرحمان صاحب کی دعوت پرخلوص پر حاضر ہوں. ترتیب کے اعتبار سے 8:15 بجے مجھے بیان ختم کرنا اور 8:15 بجے تقدیر کے اعتبار سے میں بیان شروع کروں. یہ میں لیٹ نہیں ہوں، لیٹ وہ ہے جو مجھے یہاں لیٹ لائے ہیں. ٹھیک ہے، توجہ رکھنا. کہتے ہیں نا میں لیٹ آیا میں لیٹا تھا، تو یہ نہیں ہے کہ میں لیٹا تھا میں بیٹھا تھا. میرے ذہن میں تھا کہ 7:15 بجے شروع کرنا تو فکس 7:15 پہنچے. ان حضرات نے کہا جی پروگرام ہے. مجھے اب پتہ چلا وہ 7:15 کے 8:15 میں نے آپ کی خدمت میں مختصر پورا 4-5 باتیں کرنی ہے. آپ توجہ میری طرف. میرے دوستو، دودھ والا دودھ بیچتا ہے، گھی والا گھی بیچتا ہے، سبزی والا سبزی بیچتا ہے اور وہ لوگوں کو دیتا ہے. لوگوں نے اس طرح سمجھ رکھا ہے کہ مولوی علم بیچتے ہیں، مولوی قرآن بیچتے ہیں، علماء حدیث بیچتے ہیں، مسائل بیچتے ہیں. یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال لیں. مولوی دودھ والوں کی طرح جیسے دودھ بیچتے ہیں ایسے دین بیچتا نہیں ہے، بلکہ مولوی دین کا پہرے دار اور چوکیدار ہے. وہ مسئلہ بناتا نہیں ہے، مسئلہ بتاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وہ سورۃ فاتر کی آیت نمبر 28 ہے، اور جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ سنن جامع ترمذی سے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے جو حضرت ابو درداء کی روایت موجود ہے وہ بھی علم کے اعتبار سے ہے. پہلے میں آیت اور حدیث کا ترجمہ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس موضوع کو آگے چلاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء. فرمایا میرے بندے تو سب ہیں لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. سبحان اس سے پتہ چلا کہ علماء اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. لم يورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء علماء کو درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے. انما ورثہ العلم، وہ اللہ ان کو پیغمبر کے علوم کا وارث بناتا ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. جس بندے کو یہ علم مل گیا اسے بہت بڑی خیر ملی. میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں موت سے پہلے دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ فرما دیا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسے کیا پتہ ہے. لیکن جو علم دین اور فقہ حاصل کرتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لے اسے دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں، علوم
उलूम इस्लामिया बहुत बड़ी चीज है, दीन का इल्म बहुत बड़ी चीज है। सुने, जब कोई बड़ा आदमी किसी जगह पहुंचता है, किसी मुल्क में एंट्री कर रहा है, इस्लाम मुल्क का प्रेसिडेंट, तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। रेड कारपेट क्या है? ये सुर्ख कारपेट, इसका मतलब है जैसे सुर्ख गुलाब का फूल खिल उठा है ना, हम आपके आने से खुश हो गए। नंबर 2, अब आपके पाँव जमीन पर नहीं लगने देते, कारपेट पे लगा कर ला रहे हैं, ये इज्जत एहतराम है। ये तो उसका है ना, और वो भी कभी कभी है। अब मैं आपको एक तालिब इल्म की शान बताऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन्ना मलाइकतर रहमान लतज़उ अजनिहतहा लिज़र्र तालिबिल इल्म औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, फरमाया जो दीन के उलूम हासिल करने के लिए तालिब इल्म जाता है, रब अपने फरिश्तों को कहते हैं जाओ और अपने पर इसके पांव के नीचे बिछा दो। सुभान अल्लाह। रेड कारपेट और कहाँ इस्तिकबाल और कहाँ अल्लाह पाक ने इतना रुतबा अता फरमाया। ये बच्चे बैठे हैं कुरान करीम जिनने पढ़ा है, इनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम ये बैठे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने खैर का फैसला। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिनके पाँव के नीचे रब के फरिश्ते पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं 18 फरवरी बरोज जुमरात को जामिया खालिद बिन वलीद ठीकी बिहारी में गुफ्तगू कर रहा था। हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद कासिम दामत बरकातुहू के इदारे में स्टेज खचाखच उलमाए किराम से फुल था। हज़रत मौलाना जलील अहमद अख़ुन शेखुल हदीस साहब वो तशरीफ फरमाते, हज़रत मौलाना ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी तशरीफ फरमाते, मौलाना ख्वाजा अब्दुल माजिद सिद्दीकी तशरीफ फरमाते, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन लाहौरवन, बड़े बड़े अकाबिर मौजूद थे, और हज़रत मौलाना नासिरुद्दीन खागवानी दामत बरकातुहू थे, और वहाँ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। एक आलम की गुफ्तगू चल रही है और चीफ जस्टिस साहब यूँ देख रहे हैं। मेरी गुफ्तगू के बाद उनको बुलाया गया। मैं कुछ मिनट के लिए बैठा तो उस बंदे के लफ्ज़ थे, मैं काश मैं पहले यहाँ आकर बैठता, क्या उलमा की शान है, क्या गुफ्तगू का तर्ज है। कहा मेरी चीफ जस्टिसशिप मुझे इतनी मालूम नहीं है, अल्लाह मुझे हाफ़िज़ करे। आम रिकॉर्ड है, आप अंदाजा लगाएं तो हिफ्ज़े कुरान, दीन की उलूम, दीन पर मेहनत, दीन का इल्म बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए हम खैर का फैसला फरमाते हैं। खुशकिस्मत है तालिब इल्म जिनके सरों पे आज दस्तार सजी। और मैं एक बात मजीद कह दूं, नबुव्वत हुजूर पाक पर खत्म कर दी गई, नया नबी हुजूर के बाद पैदा नहीं होना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो रसूलुल्लाह के वारिस हैं वो उलमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत को लेकर आगे चलना है, और विरासत पैगंबर इन उलमा के पास है। अब नबी की विरासत क्या है? नबी की विरासत हम समझते हैं सिर्फ मुसल्ला रसूल है। जी नहीं, ये मुकम्मल विरासत नहीं है, ये नबी की विरासत का एक हिस्सा है। मिंबर की खिताबत नबी की विरासत का एक हिस्सा है। दूसरे तक चलकर दीन पहुंचाना ये पैगंबर की विरासत का हिस्सा है। फतवा, इल्म, सवाल जवाब और दीन के उलूम फैलाना ये नबी की विरासत का हिस्सा है। और हक के रास्ते में जिहाद फी सबीलिल्लाह करना ये नबी की विरासत का हिस्सा है। दावत और तबलीग ये नबी की विरासत का हिस्सा है। मदरसा और खानकाह ये नबी की विरासत का हिस्सा है। और इस्लामी सियासत में अमली हिस्सा लेना ये पैगंबर की विरासत का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। आजकल लोगों को सारी चीजें कबूल है। मुसल्ला नबी की विरासत बहुत अच्छा, मिंबर नबी की विरासत बहुत अच्छा, मदरसा नबी की विरासत बहुत अच्छा, खानकाह नबी की विरासत बहुत अच्छा, जिहाद और तबलीग नबी की विरासत बहुत अच्छा। और कहते हैं कि इस्लामी सियासत भी उलमा के हाथ में हो। मौलवियों का क्या काम है सियासत में? मैं बातों का हैरान होता, हमें लोग पते क्या कहते हैं, हजरत मिंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल न करो। मैंने कहा मेरे भाई असम्बली में उलमा मौजूद थे ना, तो ऐसा कारनामा 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली में दिया है, रहती दुनिया तक मिर्जाई की ताबूत में कील ठोक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खराज अकीदत पेश करना चाहिए उन उलमा को भी और उन सियासतदानों को भी जिसने इसमें किरदार अदा। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं, मैं पूरी वो 5 जिल्दों पर पूरी रुदात पढ़ रहा था कि वहाँ क्या क्या गुफ्तगू हुई है मिर्जाइयों ने। मैं छोटा सा अर्ज करता हूँ, आप जिक्र दिल में मैं इंटरप्ट जिक्र होता दिल में, मैंने कभी
मकाम पे किसी को नहीं कहा ऊंचा सुभान अल्लाह को। मेरी तकारीर इंटरनेट पर अदल शाहिद है, मैंने कभी नहीं कहा। ये जिक्र है, जिक्र में असल शिफा है, दिल में कर सुभान मेरे लिए नहीं करे। न मैं किसी को सुभान अल्लाह से मुतासर होता हूँ, न किसी की सुभान अल्लाह की वजह से तकरीर लंबी करता हूँ, न मुख्तसर करता हूँ। मैंने अल्लाह के लिए कहा। मेरे दोस्तों 5 जिल्दों में पूरी तहरीर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे डाका डालने की जब मिर्ज़ाई ने नापाक जसारत की, तो उलमाए किराम की मेहनतों से, हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की मेहनतों से ये मसला कौमी असम्बली में पहुंचा। उस वक्त हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैहि थे और बाकी सारे हज़रात। जब वहाँ बात चली तो हुकूमत वक्त से बात की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अल्लाह इसकी भी मग़फ़िरत फरमाए, इसकी कब्र पे मेरा नाम रहमत नाज़िल फरमाए। इस बंदे का बहुत बड़ा किरदार है। जब इसने दस्तखत किए थे, ये जुमला कहा था कि मैं अपनी मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने कहा आप मौत के परवाने पे नहीं, रसूलुल्लाह की सिफारिश पे दस्तखत करें। तो इनकी एक करारदाद तय हुई। क्या तय हुई? भाई कादियानियों को बुलाया जाए, ऐसे काफिर अक़लियत करार नहीं देंगे। पहले उनका मौक़िफ़ तो सुने, वो बाद में कहेंगे कि हमने अपना ओपिनियन नहीं दिया था, हमने अपना बयानिया नहीं बताया था, अपना मौक़िफ़ नहीं बताया था, इन्हें बुलाए। मानसेरा के दोस्तों, ये बुजुर्ग जानते हैं 13 दिन तक कादियानियों को सफाई का मौका मिला। 1 घंटे की बात नहीं है। कौमी असम्बली में 13 दिन इस पर बात हुई है और 13 दिन उस दौर के तमाम बड़े हमारे शयूख चाहे उलमा हो या सियासतदान हो, उस वक्त सारे के सारे बैठे हैं और इनको खिताब का मौका मिला, इनको गुफ्तगू का मौका मिला। इन्होंने वहाँ दलाइल पेश किए, दलाइल के जवाबात चले। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की गुफ्तगू चली है, अटॉर्नी जनरल गुफ्तगू कर रहा है, स्पीकर कर रहा है, ये पूरी गुफ्तगू है। वहाँ पर आप पढ़े ना, हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया दावत बरकातों की जिंदगी में बरकत अता फरमाए, उन्होंने इसको पूरा को जमा करके नेट पे डाल के सब पर बिल्कुल शाया कर दिया। हर बंदे तक पहुंच मौजूद है उसकी। उसको वो लिखते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब भी दलाइल देते थे और वो भी दलाइल देते थे। जब पूछा गया ना कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम खातिमुन नबिय्यीन ने इसकी दलील इरशाद फरमाए, तो मुफ्ती साहब ने कुरान करीम की आयत पढ़ दी कि खातमुन नबिय्यीन। तो मिर्ज़ाई कहते थे कुरान का जो लफ्ज़ है ना खातमुन नबिय्यीन, इसका माना मौलवी करते हैं आखिरी नबी है। हालांकि खातम के 2 माने हैं, एक माना होता है मोहर है। तो फिर मोहर का मतलब हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिर्ज़ा कादियानी पे मोहर लगा दी, ये नबी है, वो ये माना करते। तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाए सारे मुसलमान बैठे हैं, हम सब एक बात कह रहे हैं, ये आयत हुजूर पाक पर उतरी है, कोई मिर्ज़े पे नहीं होती। हुजूर के सहाबा और अहले बैत ने ये आयत सुनी है, तो सहाबा और अहले बैत ने इसका क्या मतलब बताया था, मोहर है या आखिरी है, उनसे पूछ लेते हैं। जिनके सामने हुजूर पाक ने फरमाया। तो मुस्नद बज़्ज़ार पेश करके कही कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, इसका मतलब है हुजूर के बाद नई उम्मत नहीं है और हुजूर के बाद नया नबी नहीं है, तो हुजूर आखिरी नबी है। अब उनके पास जवाब नहीं है, क्या से क्या बात है, इधर उधर जितने दिन सफाई का मौका दिया, लेकिन मिर्ज़ाइयत ज़लील और ख्वार होकर निकली है तो इन सियासतदान उलमाए किराम की बदौलत है और इन्होंने ये काम सर अंजाम दिया है। आखिर में एक बात तो ऐसी आई जहाँ मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह फरमाते हैं रात को सोते नहीं थे, जब आते थे तो सोचते थे कि असम्बली में बाद सियासतदान ऐसे बैठे हैं जिनको दीन के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है। कादियानी सफेद पगड़ी पहन के आता है, हाथ में डंडा उठा के आता है, असा और कुरान शरीफ को यहाँ लटकाया हुआ होता है, हमारे शरीफ और बड़े जुब्बे कुब्बे में आता है। तो ये सादे बंदे कहेंगे तो अच्छे मुसलमान लग रहे हैं हमें, या अल्लाह हमें तौफीक दे हुजूर के दुश्मन का निकाब बता सके। रातों को ये मांगते। तो आखिरी दिनों में जब बात हुई ना तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली के लोगों से पूछा कि बाकी सारी बातें अपनी जगह, एक बात आप सब जानते हैं कि हमारे माँ और बाप ने हमें जो दुनिया में आने का सबब बनाया है, उन्होंने हमें दुनिया में आने का सबब बने हैं, तो हम हलाल ज़ादे हैं या हराम ज़ादे? लोगों ने कहा मुफ्ती जी क्या करें? लेकिन नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या कोई शरीफ औलाद अपने माँ बाप पे शक कर सकती है? ये क्या अपनी माँ पे कह सकते हैं कि मेरी माँ को गलत जो है ना क्या कहते हैं हराम काम करा के आई है? हर बंदा हलाली है, हम हलाली बैठे, हम हलाल ज़ादे हैं। तो मुफ्ती महमूद साहब ने मिर्ज़ा कादियानी की इबारत पढ़ दी किताब से। मिर्ज़ा लिखता है कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बगाया, कहा जो मुझे मानता है वो हलाल ज़ादा है, जो नहीं मानता वो हराम ज़ादा है। उन्होंने कहा जी मेरे तो आदित किताब नहीं है। मुफ्ती साहब ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फैसला हो गया, इसको यहाँ बिठाओ, मुझे भी यहाँ बिठाओ, हम दोनों को इस
असम्बली से बाहर नहीं निकलने देना। ये किताब मुझसे ले लें, ये चिड़ियोट का जिला है, उस जमाने में रब्बा था, चराम नगर कहते, फलां जगह की बुक डिपो से छपी है। अभी आप चिड़ियोट के DCAC से बात करें, उसे कहे वो इनके बुक डिपो से जाकर ये किताब लाए, तो इसको राब्ता न करने देना, फोन के जरिए ये वहां मना करा देगा, हमें भी बाहर न निकलने देना। जब उस किताब की कॉपी उसी वक्त हेलीकॉप्टर पे मंगवाई गई, तो उस किताब में वही लफ्ज निकले जो मुफ्ती साहब दिखा रहे थे, जलील होकर निकलना था। ये तब था जब इन उलमाए किराम के पास सियासी कुव्वत। मेरे दोस्तों, इसीलिए आलिम हर मैदान में नबी का वारिस है। ये नहीं कह सकते आप कि इस आलिम का ये किरदार यूं है, नहीं नहीं, आप याद रखें उलमाए का ये आपके हजारा के हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद सदावी रहमतुल्लाह इंतहा है यार, क्या से क्या इनने पता है क्या पेश किया था कौमी असम्बली में, ये बात तो मुझसे रह गई। एक अजीब काम इन्होंने किया, इन्होंने कहा हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद सदावी की कब्र पे अल्लाह करोड़ और रहमतें नाज़िल फरमाए। इन्होंने फरमाया कि नबी अन्नबी लैसा बिल हफ़ाज़ वला फ़हाश, नबी गालियां नहीं देता, नबी फहाशी की गुफ्तगू नहीं करता। कहा मैंने 10 दिन लगाए मिर्जे की किताबों को सामने रख के, आओ मैं तुम्हें एक फाइल देता हूँ, असम्बली के लोगों ले लो, मिर्जा कादियानी की किताबों को मैंने पढ़ा है और जमा किया है कि मिर्जा कादियानी ने कितनी गालियां दी हैं। अब बार बन गया तो मैंने सारी गालियां नहीं लिखी, मैंने कैपिटल उठाए हैं, हुरूफ तहज्जी उठाए हैं, अलिफ से कितनी गालियां हैं, बा से कितनी गालियां हैं, ता से कितनी गालियां हैं, सा से कितनी गालियां हैं, जीम से कितनी गालियां हैं, ये अलिफ से लेकर या तक एक एक अल्फाज हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद सदावी रहमतुल्लाह ने जमा किए और मिर्जे की गालियों को इनके सामने एक फाइल की शक्ल में रख दिया कि ये नबी होता है जो इस तरह गालियां देता रहे, ये होता है, ये उलमा का काम है। आप लोगों ने तामुन किया और वो असम्बली पहुंचा ना, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कब्र जन्नत के बाहर है। उन्होंने मिर्जायत की कब्र में, मिर्जायत की ताबूत में वकील ठोका है। इससे उलमा की शान सवाल आती है। आज लोगों को मौलवियों की शान पता नहीं तो बोल नहीं है। मैं हैरान हूँ, मस्जिद के इमाम कोई अच्छा सूट पहन लेना, चलो पूछे बस तो ठीक है, की हो गया। हैरान, हमारे दोस्त इमाम साहब, उनको एक बंदे ने सीडी मोटरसाइकिल गिफ्ट किया, नया मोटरसाइकिल। तो इमाम साहब पहले साइकिल पे नमाज पढ़ाने आते थे, अब मोटरसाइकिल पे नमाज पढ़ाने आते, दो मुक्त कभी आपस में एक दूसरे को सेवा वगैरह कर रहे हैं। हैरानगी की बात है। उसके साथ बातें शुरू कर दी, जिसने दिया था उसने कहा मुझसे कि किसी को नबत आना और बंदे को कर सिर्फ नबत आना, कहीं ये ना हो ना कि मेरी नेकी जाया हो जाए, ये वो मैंने अल्लाह के लिए दिया। अब पूछा बताया नहीं, लेकिन इन्हें तुझे कोई इंजेक्शन दे, तेरा तो काम खराब है। मैं हैरान हूँ, तो इकरार कर रहा है, उसके पास भी ये, उसके पास अपनी प्रोडो है, लैंड क्रूजर का मालिक है, और इमाम साहब ने मोटरसाइकिल लिया तो वो हजम नहीं होता। मैं कहता हूँ मौलवियों के खिलाफ, अभी मुझे एक आलिम साहब कह रहे थे कि उलमा पर लोग बोलते हैं, इन्हें समझाएं। मैंने कहा इनको कहो बोलने को छोड़ो, सिर्फ मौलवी की नेकी को हजम करना सीख जाए, हजम करना सीख जाए, बहुत बड़ी बात है। मैंने उन बंदों को बात में कहा, मैंने कहा भाई हम आपके घर में आए, आपके घर में ये गाय का चमड़ा और ये हिरन का चमड़ा लगा हुआ था, खूबसूरत सा एक डेकोरेशन पीस, जी ना मुझे फलां दोस्त ने गिफ्ट किया है, वो बहुत बड़ा शिकारी है। कहा आपको दोस्त गिफ्ट कर सकता है, ये जो 5 नमाज़ें इमाम पढ़ा रहे हैं, इसको कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए बंदा उलमा की शान को ऊंचा कर देके इस तरह के एतराज़ात न करे। और ये जो लफ्ज़ है ना कि मिंबर को सियासत के लिए इस्तेमाल न करो, ये कादियानियों का लफ्ज़ है, हमारा नहीं है। क्यों? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है, आप सुनो हदीस। मैं हदीस बात पढ़ रहा हूँ, किताब भी बताता हूँ और रावी भी बताता हूँ। आप इन उलमाए किराम से पूछ लेना, नहीं तो किसी आलिम से पूछ लेना। ये सर पे पगड़ी 8वें साल में आलिम के सजती है, इसे कहते हैं दस्तारे फजीलत। वो किताब सही मुस्लिम है, वो पढ़ता है तो मौलवी बनता है। सही मुस्लिम में सही हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास फरमाया, कानत बनु इस्राइल तुसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर व इन्नहु ला नबिय्य बादी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अंबियाए किराम को रब नबी भी बना के भेजते और वक्त का सियासतदान भी बना के भेजते। हदीस है हमारे पास, इसका कलमा हम पढ़ते हैं। और आज की सियासत में दीन की वजह से आए, वो कहते हैं पैसों की वजह से आए। हुजूर ने फरमाया अंबिया नबी भी होते, सियासत
بناتے, سیاستدان بھی بناتے. فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے. سیاست کے وارث بھی تو یہ خلفاء اور علماء ہے. یہ تو پیغمبر کی وراثت میں ہے. تو جب نبی کی وراثت میں ہے تو اس کو آپ ہمیں کیسے کہتے ہیں کہ پیپر پہ سیاست کی باتیں کریں. اچھا ایک بات اور سناؤں آپ کو. جب قادیانی کفر اقلیت قرار آ گئے نا اور قومی اسمبلی سے دلیل ہو کے نکلے, قومی اسمبلی نے فیصلہ کر دیا پوری قومی. اچھا مزے کی بات, یہ وہ بل ہے جب اس پر اعلان ہوا نا کوئی اس پہ نو کہتا ہے تو کسی کا ہاتھ بھی نو کے لیے نہیں ہوتا. سب نے یس کہا بھائی ہم نے سفارش اللہ کے رسول سے لینی ہے, قیامت میں مرزا قادیانی سے نہیں لینی, کوئی ایمان کرنے کیا لینی. تو سب نے رسول اللہ کے لیے ہاں کر دیا, اور جب ہاں کی بات آئی تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے. میں کہتا ہوں اٹھ نہیں گئے, اللہ کے حکم سے اٹھوائے گئے. اللہ نے کروایا, اٹھ گیا, وہاں ہو گیا. جب قادیانی ذلیل ہو کر یہاں سے نکلے اور انگلینڈ پہنچے, انہوں نے آپس بیٹھ کے مشورہ کیا اب اسمبلی بھی مولویوں سے بھری ہوئی ہے اور ان مولویوں نے وقت کے سارے سیاستدانوں کو سمجھا لیا کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے, اب کیا کریں. انہوں نے کہا تیر کے شکار کا انداز بدلے. کیسے بدلے؟ کئی الفاظ بدلے. ڈیوائڈ اینڈ رول, یہ جو پرانا انگریز کا اصول ہے, لڑاؤ اور تقسیم کرو اور معاملے کرنے اپنی حکومت سجاؤ. تو بھی مولویوں کو تقسیم کر دو. کام کیسے کریں گے؟ عوام میں کہو تبلیغ کا عالم عالم ہے, وہ عالم ہوتا ہے, اس کی قدر کرو. مجاہد عالم مجاہد ہے, اس کی قدر کریں. جو مدرس عالم قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں یہ عالم ہے, اس کی قدر کریں. خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ عالم ہے. سیاست والا یہ عالم نہیں ہے, یہ پیٹ کی وجہ سے بیٹھے ہوئے جو لوگوں میں کہے. انہوں نے طے کر کے اس طرح کروایا, اور آج ہمارے مسلمان سادہ لوگ نوجوان جن کے دل میں دین کا درد ہے لیکن اس سازش کا علم نہیں ہے, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار سیاست میں مولویوں کا کہہ رہے ہیں. سیاست میں یہ وہی حال ہے. میرا ایک شاگرد مجھے بتا رہا تھا کہ میں مارکیٹ گیا, اپنے مردانہ کپڑوں کی دکان کے سامنے ٹھہرا اور سوٹ لے کر نکلنے لگا تو عورتیں بھی تھی, تھوڑا رش ہو گیا تو غلطی سے کسی خاتون کو میرا کندھا ٹچ ہو گیا. وہ عورت دوسری عورت کہتی یہ یار مرد بھی مارکیٹ میں آ گیا, کیا کام ہے مارکیٹ میں چلتے. یہ حیران ہے, اصل میں تو مردوں کو ہی آنا چاہیے, خاتون تو گھر میں بیٹھے اس کے لیے سیمپل لے کر جائیں, 10 سیمپل ان میں سے جو پسند کر تو لے لے, باقی ہم واپس کر دیں گے. تو یہ اصل تو یہ تھا. لیکن چلو باپردہ ہو کر عورتیں آ بھی گئی ہیں تو یہ کہنا یار ان مردوں کو کیا کام ہے مارکیٹ میں آئے ہوئے. یار سادہ لوگ مسلمان سیاست کو اسلامی نبوت کی وراثت سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر سمجھ جاتے تو پھر کرتے ہیں ہمارے حقیقہ میں یہ اس طرح کی بات کر رہے. تو میرے دوستو یاد رکھنا, عالم جس میدان میں ہے وہ نبی کا وارث ہے. وہ سیاست میں ہے, وہ خانقاہ میں ہے, وہ مسجد میں ہے, وہ مدرسے میں ہے, وہ منبر پہ ہے, وہ مصلی پہ ہے, وہ نبی کا وارث ہے. جتنے کام نبی نے کیے ہیں وہ سارے کام عالم نے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ, حالت امن, ہر انداز میں علماء کو خدمت کر کے دکھایا کہ خدمت کہتے کسے. جتنے نبی کی ذمہ داری ہے, جتنی نبی کی ذمہ داری ہے, ان تمام ذمہ داریوں میں علماء ذمہ دار ہے. یہ وارث ان کا کام ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, ان کو کسی نے کہا کہ مولوی مسجد بنا کر عوام کو خراب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ اپنے لفظ کو صحیح کریں, وہ نہ لگائے تا لگائے. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا مولوی مطلب بناتا نہیں ہے, بتاتا ہے. آپ نے لفظ غلط بول دیا, بنا. موضوع کا حیران ہوں, باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی شریعت ساز ہے, اپنی طرف سے مسئلہ بتاتے. ایک شخص میرے پاس آیا, اللہ معاف فرمائے, اب اندازہ لگائے حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھا. میں بھی پوچھے, میں گھر میں گیا, میری 2 بیوی ہیں, دونوں میری ماں کو مار رہی تھی, دائیں سے پکڑا تھا ایک بائیں سے. یہ غصہ آ گیا, میں نے امی سے کہا بتا ان کا کیا علاج کرو. تو میری ماں نے کہا طلاق لے دے اس کو. تو میں نے دائیں طرف منہ کیا, اس بیوی کا نام لیا, اسے 3 طلاقیں دی. بائیں طرف منہ کیا, دوسری کا نام لیا, اسے 3 طلاقیں دی. کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں نے میری ماں کے پاؤں پکڑ لیے. تو میری ماں کو نرمی آ گئی, وہ بھی رونے لگ گئی, گلے میں ان کے راضی نامہ کر لیا. تو مجھے کہا کسی مولوی کے پاس جا اور لکھوا لا, طلاق نہیں ہوئی. نہیں کہ صاحب آپ لکھ دیں. میں کہا تیری ماں اصل مفتی تو وہ ہے, میرے پاس چاول لینے آئے, میں تجھے چھوٹے بیچ کے دوں. کوئی سادے بندے مفتی آزم, تیری ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اسے سے لکھوا اور بہت لگوا دے. نہیں آپ لکھ دیں. میں نے کہا جی میں لکھ دوں تو پھر وہ مجھے جواب سنا رہا ہے, سنانے والا تیری ماں کے جواب کو میں لکھوں گا یا شریعت کے جواب کو لکھوں گا؟ تیرا دماغ خراب ہے, تیری عقل گھاس کرنے گئی ہوئی ہے. اور خدا کے بندے رب نے 3 آپشن دیے. اللہ فرماتے ہیں طلاق مرتان فامساک
तस्रीहुम बिइहसान। फरमाया तलाक़ें 3 है, 2 में चांस मौजूद है, 1 दो या 2 दो, आपने दे दिया तो इसके बाद चांस है फइमसाकुम बिमारूफ, रुजू कर लो, रह जाओ, नहीं और तस्रीहुम बिइहसान, छोड़ दो, मसला फारिग हो गया। लेकिन फइन तल्लक़हा, अगर तीसरी तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहु, अब के लिए हलाल नहीं है। मैंने कहा तेरी माँ ने कैसे कहा, जब उसे लिखवाना वो ठीक हो गया, ये तलाक कोई वास्ता है, अतफाल है। हैरान हो जाता हूँ, बार बार लोग अपनी तरफ से मसले बनाते हैं। देखिए मैं किसी पर एतराज नहीं करता, मैं एक मसला बता रहा हूँ। जिस शख्स की दाढ़ी पूरी नहीं है वो खुद को ये समझता है कि मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे, तो एक अल्लाह तौफीक दे। मतलब माने मेरे एक शागिर्द है, मैंने उसको कहा बेटा दाढ़ी रख लो, उसने दाढ़ी रख ली। उनकी वालदा ने बड़ा बुरा महसूस किया कि मेरे बेटे को अब रिश्ता है। उसने अपने बेटे को कहा कि मौलवी यहाँ इधर गलत रात ला दिया, दाढ़ी बढ़ा दे, कोई नहीं, रिश्ता अच्छा ढूंढ के दे दूंगी, इस तरह रिश्ता अच्छा नहीं मिलता। कैसे कहते हैं रिश्ता अच्छा नहीं मिलता, मैं तो हैरान हूँ। कहते दाढ़ी बढ़ा दो तो बीवी मिलेगी, हम में से कोई दाढ़ी बढ़ा दे तो मौलवियों की बीवियां छोड़ के चली जाए। वो कहेंगे अभी आए तो थोड़ी दाढ़ी के पीछे, तो पता नहीं है अजीब कायनात में एक निजाम बना हुआ है। तो उस बेचारे ने दाढ़ी कटवाने पर माँ ने बड़ा जोर लगाया, तो वो मेरे पास रो रहा था, गुस्तानी के वजीफा। मैंने कहा बेटा वजीफे से बात नहीं है, अम्मी को कुछ रोजा लगवा दीन के पास देना, कुछ फैला माल लेकर दे, कुछ पड़ेगी। उन्होंने कहा आपसे बात करा दो। मैंने कहा ठीक है, मेरी माँ है, फोन पे घर जा, मेरी बात करा दे। वो घर गया और उसका नंबर मिला, उसका जी क्या हाल है, हमसे बात माँ से पहले बात की। अब माँ पता नहीं कोई ऑटोमेटिक मुफ्ती बनी हुई थी, अस्सलाम वालेकुम साजी की हाल है, खैरियत है, खैरियत है, ठीक है जी, अल्लाह का फजल है। एक बात तो मैंने कहा ठीक, कहते हैं कुरान करीम में लिखा हुआ है दीन में सख्ती नहीं है, ला इकराह फिद दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। 30 तारीख को मैंने सफर पे तो आपने क्यों खामखा से मेरे प्यारे बेटे की चांद से बेटे को सख्ती कर दी, अग्री नहीं करेंगे, सख्ती दीन में नहीं है। मैंने सोचा कि ये आयत तो काफिरों के बारे में होती है, इस बेचारे ने मुसलमान पे फिट किया होगा, इसे कैसे समझाऊं कि इसका शान नज़ूल ये है, इसको ना शान नज़ूल पता ना शान वरूद पता ना आयत की तरतीब पता। अब साथी औरत है, इस बेचारे को कैसे समझाऊं? तो अल्लाह ने मेरे दिमाग में एक सवाल डाला। मैंने कहा अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप फिरौन की माँ है, 140 पार हो गया क्यों? मैंने कहा आपका बेटा शायद फिरौन हो। नहीं नहीं नहीं, कैसी बात कर, मौलवी हो तुम, इस तरह बोलते ठंडी हो गई ना। मैंने कहा अच्छा अच्छा, फिर आपका बेटा कारून होगा, नमरूद होगा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये तो आप कहती हैं कि दीन में सख्ती नहीं है, थोड़ा आगे भी पढ़े, ला इकराह फिद दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व यु'मिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। पूरी कुरान करीम की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं दीन वाज़ेह हो चुका है, अब डंडा उठाकर गन पॉइंट पर किसी काफिर को कलमा पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, सिर्फ मसला सुनाया जाएगा, मानेगा ठीक है, नहीं माना अल्लाह का अल्लाह करेगा, दीन आम हो गया। लेकिन जब दीन में दाखिल हो जाएगा ना तो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, फिर मुकम्मल दीन के अहकाम मुसलमान को मानने पड़ेंगे। तो मैंने कहा आपका बेटा है अगर फिरौन, आपका बेटा है कारून, आपका बेटा है नमरूद, बेटा है काफिर, तो उस पर यह आयत पढ़ दे, और अगर बेटा मुसलमान हो तो ये उस पर फिट नहीं होती। अच्छा अच्छा बेटा मुझे ये सब नहीं पता था। तो मैंने कहा आपको किसने कहा आप ऑटोमेटिक मुफ्ती बने? हैरानगी का मकाम है, आधे मसले को उठा के लोग फिट कर देते हैं। वो कहते हैं नसरुल्लाह था, वो वोटों पे खड़ा हो गया, जब इलेक्शन में खड़ा हो गया तो लोगों का वोट दो, किसी ने कहा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसने कहा मेरे पास कुरान पे दलील लिखी हुई है, सारे वोट मुझे पड़ेंगे। पार्टी ने उसे कहा और दोस्तों ने कहा यार कुरान में कहाँ दलील लिखी हुई है, न तो किसी पॉलिटिक्स के साथ है, न तेरी कोई वोट बैंक है, न तेरे पास कितने लेन देन, मैं जीतूंगा, मेरे पास कुरान है। खड़ा हुआ तकरीर के अब लोगों को कुरान सुना रहे हैं, लोगों वोट मुझे दो, अल्लाह के कुरान में लिखा है इज़ा जाअ नसरुल्लाह, जब नसरुल्लाह आ जाए वल फतह, तुम्हें फतह मिल जाएगी। ये अजीब निजाम है, अवाम का इल्म ये है और बोलते उलमा पे अल चिट्टू मिनल डग्गर, कुछ भी नहीं आ रहा और बोलेंगे उलमा। वो कहते हैं खातून थी, उसका खावत फौत हो गया, जब खावत फौत हो गया ना तो मौलवियों के पास बच्चे गए कि हमें विरासत का मसला लिख दे, तो उलमा ने लिख दिया भाई बेटी का 1 हिस्सा, बेटे के 2 हिस्से, आपकी माँ का 8वां हिस्सा, और इस तरह पूरी तरतीब लिख दिया ना। तो माँ के पास गया तो माँ बड़ी अक्लमंद थी, रियाजी की बड़ी माहिर थी, वो मैथ तो छोड़े डबल मैथ पढ़ चुकी थी। माँ ने कहा मौलवी तुम्हें मेरा 8वां हिस्सा खराब कर देते हैं, रही तो सारी जिंदगी मैं अपने खावन दिला। उन्होंने कहा बड़ी अजीब बात है,
ایک دن سوچتی رہی، اگلے دن کہا بیٹا یہ فتویٰ غلط ہے. اس نے کہا امی تو یہ بتا کہ سالن پکا ہوا ہے یا جلا ہوا ہے، تو یہ بتا کہ کپڑے دھوئے ہوئے ہیں یا نہیں دھوئے ہوئے، تو یہ بتا کپڑے استری ہے یا نہیں ہے. فتویٰ مفتی صاحب نے لکھا ہے، غلط کہے تو کوئی مفتی کہے نا، اس کی فیلڈ کا بندہ اس کی غلطی نکالے. کوئی جج کو غلط جج کہے گا، جج کو غلط مجرم کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ سائل ہیں وہ مفتی صاحب، نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے سارے حصوں سے بڑا استعمال کا. اتنا قرآن میں پورے چلتے ہیں مجھ سے مینیجر بھیجا. مفتی صاحب کے پاس گیا تو مفتی صاحب کے پاس وہاں رش تھا تو کہا مفتی صاحب ہمارے گھر آ گئے، مجمع بیٹھا، ساری بیٹھے بیٹھے ماں نے کہا سارا حصہ میرا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. مفتی صاحب نے کہا ایسا تو نہیں ہے، قرآن کریم میں بیوی سے اولاد ہو یہ تو 8واں حصہ ہے. میں نے کہا تھوڑا یہ مشکل باتیں آپ کر رہے ہیں، سوکھی آسان بات کر سوکھی گردن سا تو موسم ہے کہ آپ بتا دیں. کہنے کو قرآن میں لکھا ہوا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اس نے یوں نہیں پڑھا ما کسب، اس نے کہا ما اغنا عنہ مالہ، جو مال ہے نا وما کسب. ما کسب نہیں ما کسب، سب کا مال ہے. یہ لوگ ہوتے ہیں اپنی مرضی کا مولوی ہوتے ہیں. ہمارے مزاج کا مولوی ہو، ہماری مرضی کا مولوی ہو تو مولوی ٹھیک ہے، اور اگر ہماری مرضی اور مزاج کا مولوی نہیں ہے تو مولوی فرقہ واریت پھیلاتا ہے، وہ مولوی دہشت گرد ہے، وہ مولوی پتہ نہیں ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے اور کیا سے کیا جاتا ہے. خدا کے لیے مولویوں کے اچھائی بھی آپ ہضم کرنا سیکھیں. یہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات. میرے دوستو نبی کے وارث صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی مولوی نے احتجاج کر کے اسٹرائک کر کے ہڑتال کرا دی اور روڈ بلاک کیا ہو کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ؟ دیکھا میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے حق میں ہوں گا تو مخالف نہیں ہوں، لیکن ابھی ڈی چوک میں کیا ہو یہ سارے آئے ہیں. کبھی مولوی آیا دھرتی پہ سب سے کم تنخواہ مولوی کی ہے اور مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر مدین کی خدمت کر رہا ہے. ہم نے علماء کو دیا کیا؟ تو میں نے کہا مولوی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تم سے پوچھوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا مدارس ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پوری دنیا میں پاکستان یونیورسٹیز لیول پہ کون سے نمبر پہ ہے؟ وہ تو 50 میں سے بھی بات جا کر نمبر لگتا ہے. اور پوری دنیا میں علم دین کے لحاظ سے کون سا ملک سب سے نمبر 1 ہے؟ یعنی پاکستان. تو کیوں؟ مولویوں نے تو تیرے مطابق کوئی ذمہ داری سر انجام نہیں دی، مولویوں نے تو ساری زندگی کھایا ہے، مولویوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ اپنے لیول میں ٹاپ 1 پہ آ گئے ہیں. کیوں؟ اور تیرے بندے تو اپنے لیول میں پتہ نہیں کتنے سے کتنے بات میں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے لوگ پڑھنے کے لیے علم قرآن، علم دین، علم حدیث پاکستان آتے ہیں. اور پاکستان کے لوگ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے انگلینڈ گئے، آکسفورڈ گیا، کیلیفورنیا میں تھا. ہم کہتے نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری تو مولوی پوری کر رہے ہیں، باقی طبقہ نہیں کر رہا. لیکن حال وہی ہے. لومڑی کو آٹا بہت پسند تھا، وہ سارا آٹا گھی والا خود کھا جاتی تھی اور بچا ہوا جو ہاتھ ہوتے تھے نا وہ بکری کے منہ پہ مل دیتی تھی کہ کھایا اس نے. سارا کام آپ نے مولویوں کو خراب کر رکھا ہے. جو مرضی ہے آپ نے خود کرنا ہے اور الزام علماء پہ. میں بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہوں. میں عوامی مجمع میں عوامی لفظوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو دین کی بات سمجھیں اور سمجھائیں، اور جو دین بتائے تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی مخالفت تو نہ کریں نا. اور میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. اللہ نے علماء کو فضیلت کتنی دی ہے آپ سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يَدْعُو لَهُ اور كما قال علیہ السلام فرمایا عالم سویا ہوا ہو سمندر کی تہ میں چلتی ہوئی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہیں. فضا کے پرندے علماء کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. عالم جس درخت کے نیچے گزرے وہ درخت دوسرے درختوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے ساتھ عالم گزرتی جا رہا ہے. اور نوم العالم خیر من عبادت العابد. عالم کی نیند عبادت کرنے والے کی عبادت سے بھی افضل ہے، کیونکہ علماء کی نیند بہت بڑی چیز ہے. میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، توجہ رکھنا. ایک نماز گھر میں پڑھیں تو درجہ 1، عام مسجد میں پڑھیں جہاں جمعہ نہ ہوتا تو درجہ 25، اور جامع مسجد میں ایک نماز با جماعت پڑھیں تو کتنا ثواب؟ 27 ب27 درجہ. ابن عمر کی روایت رضی اللہ عنہ کی روایت 27 گنا. اور یہی نماز مسجد اقصی میں اور مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000. اور بیت اللہ
पढ़े तो एक लीजिए। अब जरा सुनिए, मेरे एक शागिर्द है, वो एक मस्जिद के इमाम, उन मस्जिद वालों की उनसे मानना पड़ी, मुझे बुलाया, मैं वहाँ गया तो मस्जिद वालों ने कहा मुफ्ती साहब एक बात है, मैंने कहा जी बताएं कि आलिम ताजत नहीं पढ़ते। मैंने उन्हें कहा ठीक है नहीं पढ़ते, मैं मान लेता हूँ, ताजत नफल है, आप लोग पढ़ते हैं। एक बूढ़े बाबा जी बैठे थे, जी मैं पढ़ता हूँ, इसको चाहिए पढ़े, वरना इसकी नमाज मेरी नमाज इसके पीछे नहीं होती। तो ताजत पढ़ जाए, मौलवी बेचारा अगर न भी पढ़ सके तो क्या मुश्किल, नमाज तो पढ़नी चाहिए, मैं भी इसका कायल हूँ, लेकिन एक बंदा नहीं पढ़ता तो फतवा दे दे इस पीछे नमाज नहीं होती। तो मैंने कहा क्यों नहीं होती? कहते हैं ताजत वाला अफजल है, जो न पढ़े वो तो मफजूल है, छोटे दर्जे का, तो ये तो मफजूल है, मैं अफजल हूँ, मेरे नमाज इसके पीछे नहीं होती। मैंने कहा बुजुर्गों आपके दिल में दीन का दर्द है, ये समझो, लेकिन दीन का इल्म नहीं। कहते वो मैंने कहा आप 1000 ताजत भी पढ़ो ना, आप फिर भी मौलवी की ताजत ना पढ़ने से आगे नहीं जा सकते। कहते क्यों? एक तो मैंने ये कहा कि मौलवी की नींद आवाम की इबादत से अफजल है। नंबर 2, मैंने कहा मैं एक बात कहूँ? कहते जी हाँ। मैंने कहा ये जामे मस्जिद है? कहा जी हाँ। मैंने कहा इस मस्जिद में जब आप नमाज पढ़ते हैं कितना सवाब है? कहते 27। मैंने कहा आपकी नमाज के वक्त कितनी सफ़े होती हैं? कहते 4, 5, 6 सफ़े हो जाती है, 100 के लगभग नमाजी है। मैंने कहा ठीक हो गया। आप में से हर बंदे को कितना सवाब मिलता है? कहते 27। मैंने कहा इमाम को कितना मिलता है? अब चुप हो। मैंने कहा तुम्हारी मस्जिद की जमात नमाज जमात में कन्वर्ट हुई है इस इमाम की वजह से, तो तुम्हें 27 मिल रहा है, और 100 को दो 27 से ज़रब 2700 नमाजों के एक वक्त में इस इमाम को मिल रहा है। सुभान अल्लाह। आपने 27 सुबह के फर्ज पढ़े, इसने 2700 पढ़े, ये 3000 पढ़ रहा है एक वक्त में, और आपको 27 मिल रहा है। तू कहता है मैं अफजल हूं, मैंने 2 रकात की ताजत पढ़ ली, इसके पीछे नमाज नहीं होती। तेरा दिमाग खराब है, अपने आप को मामलात को देखो। मेरे दोस्तों यही हाल है। आज हम ये नहीं समझते कि उलमा का दर्जा कितना बड़ा है। बाज़ों का मैं मुख्तलिफ चीज़ों पर हैरान हो जाता हूँ। मेरी अपनी मस्जिद जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ, अलहम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से पढ़ा, एक ही मस्जिद। क्यों? मैंने फी सबिलिल्लाह पढ़ाना है ना, तो इसलिए न मैंने मौलवी लोगों से तनख्वाह का मुतालबा करना है, न उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की उन्वान का मुतालबा करना है। मैंने जो सुना है उन्हें सुनना है। तो शुरू में जब बात चल रही थी ना, तो अवाम की आदत है वो जुमा नमाज में बहुत लेट आए। ये हमारे उलमा की शफ़क़त है, ये जुमे की तकरीर में लगे रहते हैं, मुझसे ये काम नहीं होता। मैंने दूसरे जुमे देखा ना कि लोग बहुत लेट आ रहे हैं, जब तकरीर खत्म होती है, खुतबे का वक्त होता है, उस वक्त आ रहे होते हैं। तो मैं अगले जुमे में आकर कुरान खोल के बैठ गया, अपनी तिलावत करने की सूरत आप जुमे के दिन पढ़े, बहुत बड़ा सवाब है, दज्जाल के फितने से बचते, चल पढ़ो 12 मैं पढ़ता रहा, तकरीर का टाइम फिक्स चला। जिस टाइम खुतबे का वक्त हो, मैं कहीं अज़ान दे दे, सुन्नतें पढ़ ले और खुतबे की नमाज़ पढ़े। मैंने कहा जी बयान, मैंने कहा क्या जरूरत है बयान के फायदे? कहा जी मसला बताएं। मैंने कहा मसला सवाल से निकला है, सवाल करोगे तो जवाब होगा, तो आते नहीं हो, तुम बैठे हो घरों में, तो मैंने तो मसले पढ़े हुए हैं, मैं खिड़कियों को सुनाऊंगा, मेरी खिड़की प्यारी शागिर्द, मसला नमाज का फर्ज है, मेरा पंखा भाई ज़कात बहुत अच्छी चीज है, मेरी छत बहन रोजा बहुत अच्छी, इनको सुनाऊंगा। मेरे सुनाना तुमने आना नहीं है, तुम्हें इनको सुनो। मैं बिजली के बटनों को सुनाऊं, सफेद बटन ये सवाब है, हाँ पंखे का डिम्मर ये सवाब है, ये सुनो। चुप। मैंने कहा बाबा तुम आओगे मसले बताओ, 1 घंटा हो गए, घंटा बोलूंगा, लेकिन तुम नहीं आओगे तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी पर ठप्पा नहीं लगा हुआ कि वो बोलता रहे तुम्हारा इंतजार। खुतबे से जुमा होता है ना, जुमा तइल्ला पे खुतबा पढ़ोगे तो जुमा होगा, वरना नहीं। तो वो खुतबा पढ़ लेंगे और अल्लाह आप भी कर और हम भी कर। वो दिन और ये दिन लोग आते हैं तो मैं तकरीर करता हूँ, वरना जी नहीं। और मेरी गुफ्तगू में जुमे में घड़ी में देखकर 15 मिनट का बयान था, आगे पर 12 मिनट में बयान खत्म। छुट्टी तो लोग आए पहले सो गए। एक जगह मैंने ये बात की तो एक बंदे का मतलब आप हर बात की दलील देते हैं, इसकी दलील क्या है कि मुक्तदी पहले आए, इमाम को पहले आना चाहिए। मैं क्यों? कहते इमाम लाइट जलाएगा, दरवाजे खोलेगा, झाड़ू लगाएगा, पानी पा के बोल, ये काम मौलवी है, सादा बंदा वो नमाज पढ़ाने आया है। तो मैं बातों का हैरान होता हूँ। तो मैंने कहा दलील, मैंने कहा मैं दलील देता हूँ। कहते बताएं। मैंने कहा सबसे अफजल नमाज इस धरती पर कौन सी पढ़ी गई है, जो सबसे अफजल नमाज हो? कहते आप बता दें। मैंने कहा जहाँ इमाम भी नबी और मुक्तदी भी नबी, मेराज की रात आका नामदार साहब नमाज मानते हैं नहीं मानते? इमाम अल अंबिया ने पढ़ाई, कहते जी हाँ। तो
मैंने कहा रसूलुल्लाह ने सबसे अफजल नमाज पढ़ाई है, जहाँ इमाम भी नबी और मुक्तदी भी नबी। तो सर इमाम ने मुक्तदियों का इंतजार किया था नहीं, जब हुजूर मस्जिद अक्सा दाखिल हुए तो तमाम भी जौक दर जौक मिले, अल्लाह के रसूल का इस्तकबाल किया। मैंने कहा पता चला मुक्तदी पहले आते हैं इमाम बाद में। और आजकल उल्टी कर गया है, इमाम साहब आप 5 मिनट लेट क्यों हो गए? 5 मिनट में बंदे को पता नहीं क्या से क्या होने लग जाता है। 2.5 घंटे की फिल्म देखने के बाद भी कहते हैं बड़ी जल्दी खत्म हो गई। वहां कोई मसला नहीं है, मौलवी साहब ने 2 मिनट को 3 मिनट लेट भी हो गए ना, नहीं मौलवी पता नहीं मौलवी नहीं है, कंप्यूटर का क्लिक क्या इधर क्लिक करो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बहुत सादी इंसानियत है और अपने मसलों पर कोई साथी नहीं है, मौलवी के मसले में सारे सादे हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपकी मस्जिद का मौलवी, मस्जिद का खतीब, मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद का मुअज्जिन आपकी जिम्मेदारी है। ये जब कोरोना वायरस आया ना तो इसमें लॉकडाउन पड़ गया और सबसे ज्यादा मिडिल क्लास तबका मुतासर हो, उसका रोमांच बंद हो गया, बिजनेस उनका खत्म हो गया। एक हमारे दोस्त बिजनेसमैन है, मुझे क्या लगे हमारे मस्जिद में मेरे बैठे थे, मौला साहब आपका तो बड़ा इस्लाम दुआ वाला एक माहौल है, आप जरा कुछ गरीबों के नाम मुझे बता देते अपने मोहल्ले के, चलो मैं उनके साथ थोड़ा तावन कर सकूं। मैं बैठा हूँ और हमारी मस्जिद से एक इमाम साहब बोल गए और हमसे कह रहे चलो मुझसे तो कह रहे इमाम साहब से कह रहे, उस इमाम कहते हैं कोई गरीब है तो मुझे बता। इस इमाम की कैफियत सारे आज तक वो साइकिल पे आ रहा है, इसके घर में तुझे एक थैला आटे का देते हुए मौत पड़ती है, उससे पूछ रहा कोई और गरीब है तो दस, इससे बड़ा लतीफा कोई हो सकता है? मेरे मोहल्ले में एक मेरे मुक्तदी है, नाम में किसी का नहीं लेता, उसकी वजह है कि मौलवी को सबका साझा होना चाहिए और राजदार होना चाहिए। मैं वाकया बता, बकरीद के दिन शुरू है तो हमने कुर्बानी सेमिनार रखा, वहाँ मैंने कुर्बानी के मसाइल बताए, यूं कुर्बानी है, यूं है, यूं है। अब मेरे पास मौला जरा मेरी बात सुन ले और मेरा बिजनेस का लेवल चेक कर ले, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। कुर्बानी हर उस बंदे पे वाजिब है जिसके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत मौजूद है, वो आज के दौर में 50,000 रुपए। अगर 50,000 रुपए किसी की जेब में पड़े हुए कर्जे से जाए तो उसको कुर्बानी बना इन दिनों में तो 100 का हिसाब है। अब वो मेरे पास ये हिसाब लगवाने आए, जब मैंने समझा उसके बाद भी कहते नहीं जब आएगी सही, जब बाद में आप मेरी भी रैश वाली रंग पड़ा कुछ है तो मैंने उन्हें कहा एक बात तो कहते जी, मैंने कहा पिछले 2 माह पहले आपके 3 बेटों की शादी करने तो 2 घर का अल्लाह मुबारक करे, कहते आपने मुबारक दी थी। मैंने कहा 3 दिन आपने मुझे सोने नहीं दिया था, आपने वो मौसीकी कराई थी और पता नहीं कौन कौन से मिरासी और डम बनवाए थे आपने, और उनने 3 दिन दब दब करके पूरे मोहल्ले को जगा के रखा है। वो वाला शादियों में होता रहता है। मैंने कहा मिरासियों को कितने पैसे आपने दिए थे? नहीं है आंसर में आपने कितने पैसे दिए? कोई एक महफिल मौसीकी पर तकरीबन ₹1,00,000 को खर्चा आ गया, 3 रातें लगी रही हैं, 3 से 4 लाख का खर्चा हुआ है। मैंने कहा आपने मुझसे पूछा था मौलाना मेरा बिजनेस लेवल चेक कर ले, मेरे ऊपर महफिल मौसीकी कराना वाजिब है या नहीं? उधर तो आपने बड़ी शौक से शैतान को राजी कर लिया, और जब दीन की बारी है तो उधर चेक कर ले मेरे ऊपर कुर्बानी आती है या नहीं आती। बकरे को तो छोड़ो, गाय के एक हिस्सा 10,000 का पड़ता है, उसमें ऐसा शामिल होते आपको बहुत पड़ती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में रहकर कुर्बानी की है और किसी एक साल के अल्लाह के रसूल को कुर्बानी लाज़िम नहीं थी। सैयद अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु गरीब सहाबी है, उनकी मईशत लेवल उतनी नहीं थी जितनी वहाँ होनी चाहिए। हज़रत अली पूरी जिंदगी 2 बकरे ज़बह करते। अब आप एकदम शायद इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत अली 2 बकरे ज़बह करते, कपड़ा एक अपने अल्लाह के नबी की तरफ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अन्नहु ला यअती यौमल क़यामत बिकुरूनिया व अशारिया व अज़लाफिया, वो अपने खुर, अपने सींग, अपने खाल, अपने बाल के साथ आएगा और किस बंदे को जन्नत ले जाएगा। ये शहादत मिल जाए, वहाँ खुले सिरात के ऊपर दुनिया ठहरी हो और कुर्बानी का जानवर जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया हो वो आए और हमें लेकर जन्नत में उसके वास्ते से पहुंच जाए, खुदा की कसम दुनिया की दौलत लग जाए उससे बड़ा काम कितना मकाम है। ये कुछ दिनों पहले मैंने सुन्नत के मुताबिक जुल्फे रखी थी, आज मुझसे दोस्त पूछ रहे थे बोला आपको जुल्फे बहुत प्यारी लगती थी, आपने बाल कटा दिए। मैंने कहा जी मैं जनवरी में उम्रे पे था तो अल्लाह ने फजल किया, मैंने कहा मैं तो हर 2 माह बाद हम सफर करा देते हैं तो मेरी ख्वाहिश थी कि हो जाए, लेकिन पिछले साल फरवरी में उम्रे बंद हो गए तो मैंने इसलिए बाल रख लिया कि मेरे मौला ये कटेंगे तो हरम में जाके कटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब ने अब उम्रा करा लिया मैंने कहा, तो इसलिए बाल कटवाया, इस बाल नहीं करवाया।
मैंने उस बंदे को मैंने कहा खुदा के बंदे उम्र ऐसा है राजा कयो में वलदत को जैसे आज अपनी माँ के पेट से निकल के आया गुनाह माफ हो गया। यार ये दौलत मिल जाए बाल क्या बंदे का सर कट जाए ये भी बहुत कितनी बड़ी चीज नहीं है। सारी जिंदगी के गुनाह माफ का पैकेज ले लो कम चीज है। तो बाद वक्त चीज को देखा जाता है कि किस तरह है। कुर्बानी भी ऐसे आप करेंगे आपको कितना बड़ा रुतबा और मकाम और मर्तबा मिलेगा। और हम लोग पता नहीं कुर्बानी के बारे में इतना दिल छोटा करके बैठ जाते हैं। अच्छा खाली दिल छोटा नहीं करते, किसी ने बकरा ज़बह भी कर लिया ना तो गोश्त को स्टोर करके रखे, फ्रिज में रखेगा और कोई धूप पे सुखाएगा, भाई साग के साथ हम इसको खाएंगे सूखे गोश्त को, बड़ा मजा आता है। वो कहते हैं ना एक बंदे ने ख्वाब देखा, उसका जो बकरा था ना वो अल्लाह के यहाँ ज़बह होने के बाद कबूल हो गया और बकरा जंगल पे बैठा हुआ, बड़ी खूबसूरत जगह है, बाग है। तो वो गया ओए मेरे बकरे मियाँ, उसने कहा क्या हाल है मेरे मालिक मियाँ, ठीक ठाक। वो बात कर रहा था जन्नत में बैठा है, बड़ा खुश था। उसने तो उसने कहा अल्लाह के यहाँ मैं कबूल हो गया, तूने बड़े इखलास से मतलब मुझे ज़बह किया, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, देखो मैं अच्छी जगह में बैठा हूँ। तो अपने ख्वाब में उससे बात कर रहा है। तो उसने कहा वाह तू तो बड़ा मोटा ताजा था, एक जगह बैठे, उठ जरा मुझे चल के दिखा, तेरी चलने की अंदाज बहुत प्यारा था। मैंने कहा सॉरी मालिक साहब मैं चल नहीं सकता। नहीं चल उठ, सब ये धक्के धोखे दे के उसे उठा दिया। वो जो उठा ना उसकी टांगें तीन थी, एक टांग नहीं थी, वो लड़खड़ाए बोले चौथी टांग तेरी कहाँ है? मैंने कहा मालिक साहब ज़बह तो मुझे किया था लेकिन मेरी एक टांग तेरी बीवी ने अभी तक फ्रीजर में स्टोर करके रखी हुई है, वो खाओगे तो मुझे यहाँ लगेगी। हम अजीब लोग हैं, ये हालात तक हम पहुंचे। मेरे दोस्तों दीन के ऊपर खर्च करें तो खुश होकर। मैं एक नसीहत और वसीयत के तौर पे कहता हूँ, खुशकिस्मत है ये लोग। इसे बात में है जिस बंदे ने कुरान करीम पढ़ा, याद किया, मन कराल कुरान व अमिल बिमा फी उल बिसवालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौजुहु अहसनु मिन ज़ौज शम्स। उसके माँ बाप को क़यामत में ऐसा ताज मिलेगा कि उसकी रोशनी का सूरज की रोशनी मां हो जाएगी, ऐसा ताज मिलेगा। ये माँ बाप का कितना बड़ा एजाज़ है। अशरतुम मिन आलि बैती कुल्लुहुम वजबत अलैहिम नार। अपनी फैमिली 10 मेंबरों की सिफारिश करके जन्नत ले जाएगा जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका है। एक हाफिज़ कुरान। मेरे दोस्तों ये 10 हाफिज़ नहीं बैठे, 10 जन्नत की टिकट्स में। मुबारकबाद के मुस्तहिक है इनके वालिदैन और इनके असातिज़ा, इनके पढ़ने पढ़ाने वाले। मेरे दोस्तों हाफिज़ जो है ना, हाफिज़ ये शफी है क़यामत में सिफारिश करने वाला। आप देखें ना किसी ऑफिस में जाए ना अपनी वो लेकर, उसे क्या कहते हैं सीवी लेकर, मैं यहाँ अप्लाई करने आया हूँ, कोई कहे ना कि यार आगे सर्दी है, तो कहते यार कोई जरा वोट देने को सिफारिश होनी है ना यार, 10 दे। सिफारिश बहुत बड़ी चीज़ है। तो कल क़यामत में मालिक की अदालत लगनी है, जज की नहीं। अल्लाह जज बन के फैसला नहीं करेंगे, मालिक बन के, मालिक की यौमिद्दीन। और मालिक की अदालत में सिफारिशें चलें, क्योंकि मालिक अपने किसका मालिक है, जिसको माफ कर दे। जज तो कानून का पाबंद है, तो सिफारिशें चली ना। तो सिफारिश इस तरह है, अगर आप खुद कुरान नहीं पढ़ सके ना मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए मैं लजाजत के तौर पे आपको मिन्नत करते हुए कहूँगा अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओ, कल क़यामत में सिफारिश बदल जाएगी। मेरा फार्ग है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़। एक शख्स ने ख्वाब देखा वफात के बाद कि हमारे खानदान के बंदे और कब्रिस्तान के लोग बैठे हैं, दरख्त की चीजें गिरती हैं, वो चुनने लग जाते हैं, खाते हैं, बहुत खुश होते हैं। 2 बंदे और बिल्कुल दूर जाकर बैठे हुए मियाँ बीवी टेक कर रहे हैं। उनसे जाकर बंदे ने कहा भाई आप भी जाओ, ये बोलते थे जो फौत हो गए थे ख्वाब में देख रहे आप भी कुछ चीजें चुने अपने रिश्ते में बात करें। उन्होंने कहा छोटी छोटी चीजें नहीं चुनते, हमें थोक के हिसाब से माला करते हैं, होलसेल का करोगा। हमारा बेटा हाफिज़ है, जुम्मे कुरान करीम की बला चीज है, जुम्मे तक कितने से इतनी मंजिल पढ़ के हमें भेज देते हैं, हमें मंथली में, हमें जरा वीकली मिल जाता है। इस तरह है, अपनी औलाद को दीन पढ़ाओ ताकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कारिंदे बनकर काम। कैसे कारिंदे? और सुने, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम काम करते हैं ना, तक वो जो मेहनत करते हैं तो रिस्क मिलता है। मेरे दोस्तों कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह के हाथ में, लेकिन इस तरह के तक
نکلا اس سے دل ٹوٹ جائے گا، ڈسہارٹ ہو جائیں گے. ترغیب دینے کا طریقہ ہوتا ہے. اپنے بیٹے کے سامنے ایک حافظ کو بلاؤ، بچے کو آؤ بیٹا میں تمہیں انعام دیتا ہوں، ماشاء اللہ تو حافظ. آپ کا بیٹا پوچھے گا کہ ابو آپ نے انعام تو دیا، آپ کا رشتہ دار نہیں تھا، حافظ ہے قرآن کریم اس نے پڑھا، اس میں انعام مل رہا ہے، تو اس کو مائنڈ فریش ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا حافظ کی عزت ہوتی ہے. بچوں کو بچوں والے طریقے پر سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بیوی سے اور ایران قرآن کی باتیں نہیں کرو، یہ کرو. آج میں ایک محفل میں کیا، ایک حافظ قرآن نے کیا سے کیا پڑھا، واہ کیا بات ہے، بہت اچھے لوگ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے ہار پہنا. وہ انجانے میں بچے کا ایک مائنڈ بنے گا. اور پھر جب بچوں کو چیز آ جاتی ہے تو خدا کی قسم وہ بڑی عمر تک پھر اس میں کمال حاصل کر لیتے ہیں. آج ابھی حضرت بھائی کوئی صاحب کی مسجد کے افتتاح میں ہم بیٹھے تھے تو ہمارے ایک وہاں خان صاحب نماز پڑھ رہے تھے، میں نیچے بیٹھا تھا. اپنے بیان سے پہلے میں نے دیکھا 3 بچے ہیں اور تینوں کا خان کو کہہ اسپیکر مائک ہمیں دے، ہم بھی پڑھتے ہیں. میں نے 2-3 بار دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کہ تیسری بار مجھے سمجھ آیا کہ یہ بچے مائک مانگنا چاہتے ہیں. بڑے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے بندے مائک کے سامنے آ کر یوں کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے سانس بھول جاتے ہیں، بچہ لگ جاتے ہیں. تو میں نے دل میں طے کیا، میں نے کہا میرے مولا میری تقریر کا ٹائم اگر آدھا گھنٹہ ہے تو میں 5 منٹ کر دوں گا، ان کو ٹائم دلاؤں گا، یہ امت کے بیت میں ہمار بنے گی. میں جب بیان میں نے لوگوں شاعر پڑھو ایک نے دوسرے نے ان کو دیکھ کے 2-3 پیچھے سے اٹھ کے آ گئے. میں نے کہا یہ سب پڑھے. مجمع میں کسی نے تلاوت کی، کسی نے نعت پڑھی. میں اپنے دل کی اطمینان کی کیفیت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. یہ بچوں نے آج پڑھا ہے نا، کل اللہ کی قسم کیا سے کیا معاملہ ہوگا اور یہ مضبوط رہیں گے اپنی حوصلے پہ اور اپنی خود اعتمادی پہ. 1997 کی بات کر رہا ہوں. حضرت مولانا طارق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں گفتگو کا موقع ملا تو چھوٹی عمر تھی، غالباً میری کوئی 11 سال، 86 کی پیدائش میں 97 دیکھے تو گفتگو کے دوران جب مولانا اسٹیج پر آئے تو مجھ سے بات نہیں ہو سکی، زبان لڑکھڑا گئی. میں کیا کہہ رہا تھا یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے. مولانا اپنی کرسی سے اٹھے اور میری کمر پہ شاباش بہترین، بولو بولو بہت اچھی بات کر رہے ہو. میرا گئی ہوئی ہمت واپس آئی اور حوصلہ واپس. آج آپ مجھے کسی مجلے میں ٹھہرا دینا، اللہ کے فضل سے میں مرعوب نہیں ہوں، پریشرائز نہیں ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، معافی ضمیر بیان کر لیتا ہوں. ایک تعلیم کہاں لے گئی. آج میرے بچوں کو تھپکی دیتے اور وہی آتا ہے. نہیں کہتے کوئی آج ان کی حوصلہ افزائی کر دو، کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں. میرے دوستوں آپ بھی اپنی اولادوں کو سمجھائیں، پڑھائیں، بتائیں اور انہیں دین کے علوم سکھائیں. میں ایک بات کر کے بات کو خلاصہ ختم کر کے معاملے کو ٹھکانے لگانے لگا ہوں. اسکول میں کلاس چل رہی تھی، استاد اپنے بچوں کو اسکول میں بٹھائے ہوئے تھے اور ڈرل کا پیریڈ تھا. تو استاد نے بچوں کو کہا بیٹو بتاؤ بڑے ہو کر کیا بنو گے. ایک بچے نے کہا انجینئر، ایک نے کہا ڈاکٹر، ایک نے کہا فلاں، ایک نے کہا فلاں، کسی نے کہا جی پائلٹ. سب ہوتے گئے. ایک بچہ بڑا سادہ سا تھا کلاس میں. صاحب نے اسے دیکھا کہ تمہیں ہاتھ کھڑا کر کیا بنے گا. اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا استاد جی میں صحابی رسول بنوں گا. کلاس میں سناٹا چھا گیا. استاد بڑا حیران ہوا کہ یار صحابی رسول. مجھے بولا تھا آیا صاحب کے سامنے ٹھہرا کہ بیٹا تجھے پتہ ہے صحابی کیسے بنتے ہیں. تو پریشان ہو گیا. بچے نے اس کو غلط کہا. صحابی بنتے ہیں جب نبی آتا ہے، اس کو دیکھ کر ایمان لانے والا صحابی ہوتا ہے. اب تو ہمارے نبی پاک تو آتے ہی نہیں پتہ کہ یہاں آتے نبی. تو کہ جب حضور نے نہیں آنا تو نیا صحابی کہاں سے آئے گا. بیٹا آپ کیسے کہتے ہیں. بچے کی آنکھوں میں آنسو آئے. بچے نے کہا استاد جی مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی جتنی آپ نے بتائی. تو نے کیوں کہا میں صحابی بنوں گا. اس نے کہا میری امی اور ابو گھر میں ظہر کے وقت کبھی شام کے وقت سوتے ہوئے ہمیں حدیث پاک فضائل اعمال سے سناتے کہ صحابی ایسے تھے، صحابی ایسے تھے، صحابی ایسے تھے. انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے. میرے دل میں آیا کہ میں بھی بڑا ہو کے صحابی بنوں. میری بھتیجی ہے میرا، اللہ پاک سلامت رکھے. میرا بیٹا محمد، دونوں بیٹھے تھے. 3-4 دن پہلے کی بات ہے. میں نکلنے لگا تو کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها کی تفسیر میری بھتیجی، اس کی 10 سال بھی عمر نہیں ہے، میرے بیٹے کو سنا رہی ہے. حضرت
वाकयात सुने हैं, हजरत नूह और उनकी कौम के किस्से सुने, हजरत आदम और शैतान की लड़ाई सुनी है, रसूलुल्लाह और अबू जहल के मामलात सुने हैं। खुदा की कसम ये बचपन में सोए नींद नहीं आती थी जब तक ये सुनते रहे। तो हमारी माँ भी सुनाती थी। वो आज मेरी माँ इस धरती पे नहीं है, मुझे अपने माँ बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ अल्लाह उनकी कब्रों पे रहमतें उतारेगा, करोड़ों अरबों रहमतें इनकी नाज़िल फरमाए इनकी कब्रों पे। आज भी अगर किताब में ये वाक़यात आते हैं ना तो मुझे उसकी मुताले की जरूरत नहीं होती, वो बात मेरे ज़हन में नक्श होती है। आप अपने बच्चों को सोचते वक्त ये एक थी बिल्ली, ये एक था कुत्ता, फला ये किया, लोगों ने ये किया, बाप ने यूं किया अंतरा मुझे बातें बनाते हैं, बच्चे पर जाते हैं। और बच्चों को डराने के लिए हाउ आ जाएगा। हाउ किसी चीज का नाम है? आप बता दें हाउ किसे कहते हैं? हाउ लिखे गूगल पे जवाब आ जाएगा। हाउ तो है ही कुछ नहीं, जो कुछ नहीं है उससे बच्चा उड़ रहा है। भाइयों अपनी औलादों की तर्बियत करें, खुद दीन पे नहीं चल सकेंगे, चलाएं, हमारी दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी बनेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ बातें मैंने आपको खिदमत में की है, सिर्फ इसी वजह से कुछ कहा अवामी मंच में तो अवामी बात करें, तो मैंने इसलिए चंद बातें आपकी खिदमत में की हैं। अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो तो अल्लाह के लिए माफ करना, लेकिन मेरे अल्फाज सख्त थे, बात हकीकत को अल्लाह आप पर